یہ جائزہ جو ہے ہم پینل ڈسکشن کی صورت میں لیں گے. ووٹرز بھی اویئر ہونے لگے ہیں, اب انڈیویجولی ڈیسیجن لیتے ہیں. کیونکہ ایک مثبت قدم ہے ہماری ریاست کی خوشحالی کے لیے. ایک گہما گہمی نظر آ رہی ہے پورے شہر اور دیہات. بہت سارے جو ہے کرٹیسزم بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کو. شخص پر زیادہ تر جو مقابلہ ہے وہ این سی اور پی ڈی پی کے درمیان. ہر ایک پارٹی کو جو ہے زیادہ تر نارتھ کشمیر کی جو سیٹ ہے اس پہ نظر ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس. آپ دیکھ رہے ہیں ایشمی کمیونیکیشن کی خصوصی ٹرانسمیشن. اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہم وادی کشمیر کی 3 پارلیمانی نشستوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے, اور یہ جائزہ جو ہے ہم پینل ڈسکشن کی صورت میں لیں گے. آج کی اس پینل ڈسکشن میں جو ہمارے مہمان رہیں گے ان میں ہمارے ساتھ میں ہے سینئر صحافی اور انڈیا ٹوڈے گروپ کے گروپ ایڈیٹر جناب اشرف وانی صاحب, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پولیٹیکل انالسٹ شارق مقبول صاحب, ایشین میل کے مدیر اعلیٰ جناب رشید راحل صاحب, اور خاص بات جو ہمارے اس پینل ڈسکشن میں رہیں گے ہمارے ملٹی میڈیا نامہ نگار, سینٹرل کشمیر سے ہماری صدف شبیر, ساؤتھ کشمیر سے ہمارے شاہ ہلال, اور نارتھ کشمیر سے ہمارے شیخ سنجیل. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اوورآل کیا ہے گراؤنڈ سچویشن اس وقت پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے. گفتگو کا جو آغاز ہے ہم سینئر صحافی اشرف وانی سے کرتے ہیں. اشرف, اگر میں غلط نہیں ہوں 96 سے لے کر اب تک آپ نے کم و بیش تمام اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات جو ہے کلوزلی کور کیے ہیں, لیکن یہ جو پارلیمانی انتخابات ہے یہ ایک مختلف سیاسی ماحول میں ہے, کس طرح جائزہ لیں گے؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس انداز سے پہلے کے چناؤ جو ہوتے تھے خاص طور سے 370 ہٹنے سے پہلے, اس میں اندازہ لگانا کافی آسان ہوتا تھا کہ کس پارٹی کا ایج ہے, کون سی پارٹی چناؤ جیت رہی ہے. ہمارے لیے کافی آسان ہوتا تھا خاص طور سے صحافیوں کے لیے. لیکن 370 ہٹنے کے بعد یعنی 5 اگست 2019 کے بعد اور پھر 2022 میں جو پریسیمن ہوا, جو ان سیٹوں کا بٹوارا اور حد بندی ہوئی ہے, اس کے بعد بہت کچھ چینجز آئی ہیں خاص طور سے پارلیمانی انتخابات کی اگر ہم بات کریں گے. کیونکہ ایک تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جموں کشمیر کے سیاسی پارٹیاں جو ہیں, ان کے نظریے, ان کے نعروں اور ساتھ ساتھ ان میں اضافہ بھی ہوا ہے. تیسرا سب سے بڑا چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ووٹر جو ہے اب وہ بہت میچور ہوا ہے. ووٹر اب جو ہے, کیونکہ ینگ ووٹرز بھی 18 سال کے بعد کسی کو بھی, وہ جو ینگ ووٹر پاپولیشن ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے, نہ صرف جموں کشمیر کے چناؤں میں بلکہ ساتھ ہی ساتھ پورے دیش کے چناؤں میں, جو جس کو ہم مستقبل کی سیاست کہیں گے اس کو طے کرنے میں ان کا کافی کلیدی رول ہوگا. جو میں اپنا تجزیہ آپ کو ان 3 پارلیمانی نشستوں پر بتاؤں, اس سے پہلے خود بطور صحافی یہ چاہوں گا کہ جو زمین پر ہمارے صحافی ہیں, کیونکہ ان سے مجھے بھی اضافہ ہوگا ان کی رائے جاننے میں, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس پر وہ اس پہ آئیں گے. شارق صاحب, آپ کس طرح ان انتخابات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بہت ہی دلچسپ انتخابات ہو رہے ہیں اس بار. ایک تو روایتی سیاست دان تو ہے ہی ہے, کچھ جو بائیکاٹ جو ڈاڈا تھا وہ بھی اس بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کہیں نہ کہیں ہمیں کوشش لگ رہی ہے ان کی بھی, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک کلیدی رول اس الیکشن میں وہ بھی نبھائیں. جہاں تک روایتی سیاست پارٹیوں کی بات ہے, نیشنل کانفرنس ہے, پیپلز کانفرنس ہے, یا باقی جو پارٹیاں ہیں, وہ اپنا زور تو آزما ہی رہی ہیں. لیکن جو ایک جیسے میں نے کہا کہ جو اپنا ایک علیحدگی پسند جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے, ان کیمپ سے بھی کچھ ایک کینڈیڈیٹس سامنے آ رہے ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم ہے ہماری ریاست کی خوشحالی کے لیے. اور وہ جو ایک ڈاڈا تھا, وہ جو ایک ووٹ بینک تھا, ووٹ جو اپنا جو بائیکاٹ کا ابھی تک بائیکاٹ کے ساتھ تھے, وہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں امید ہے کہ کچھ اچھے چہرے بھی سامنے آ سکتے ہیں اس میں. راحل صاحب, چونکہ آپ کا وسیع تجربہ ہے سیاست کے حوالے سے یا سیاسیات کے حوالے سے, آپ کس طرح ان انتخابات کو دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ اشرف صاحب اور شارق صاحب نے پہلے ہی بتا دیا, یہ الیکشن 1987 کے بعد پہلی مرتبہ ایسے ہو رہے ہیں, ایک گہما گہمی نظر آ رہی ہے پورے شہر اور دیہات میں بھی.
یہ پہلا موقع ہے جب 1987 کے بعد شہر سری نگر کے مختلف علاقوں میں خود لوگ سیاسی ورکر خود پوسٹر لگا رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے، اپنے لیڈران کے جھنڈے وہاں لگاتے ہیں، اپنی پارٹیوں کا پرچار کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہی ہیں۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے۔ جہاں تک پارلیمانی انتخابات کا تعلق ہے، ان میں زیادہ گہمی نہیں رہتی تھی، لیکن آج جو دیکھنے میں مل رہا ہے، یہ گہما گہمی آنے والے اسمبلی انتخابات میں ایک گہرا اثر چھوڑ دے گی، اور جیسے کہ شارق صاحب نے کہا کہ نئے لوگ میدان میں آئیں گے، اور خاص کر وہ لوگ جو آج تک بائیکاٹ کے ساتھ تھے، شاید آج کے ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں، آنے والے وقت میں وہ بھی ان انتخابات میں شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ وادی کشمیر میں گراؤنڈ زیرو سچویشن کیا ہے ان انتخابات کے حوالے سے ایک ایک کر کے ہم اپنے نامہ نگاروں سے بات کریں گے۔ صدف، بہت کلوزلی آپ ان انتخابات کو دیکھ رہی ہے، کور بھی کر رہی ہے، کم بیش آپ نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کو کور کیا، ان کو رپورٹ کیا، آپ نے لیڈران کی تقاریر اور ان کی جو پریس سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا اور پڑھا ہے، لوگوں سے آپ نے بات کی ہے، کیمرے کے سامنے لوگ آ رہے ہیں اور آف دی کیمرہ بھی بہت کچھ باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ کس طرح دکھ رہی ہے گراؤنڈ سچویشن کیا ہے خاص طور پر سینٹرل کشمیر میں؟ جی سر، اگر ہم سینٹرل کشمیر کی بات کریں تو ابھی لوگوں میں جو ہے بہت جوش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے یہ جوش نہیں تھا، کیونکہ پہلے الیکشن جب ہوتے تھے تو اتنا جوش نہیں دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن آج بہت زیادہ جوش ہے، خاص طور سے جو نیو ووٹرز ہیں ان میں زیادہ جوش دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم این سی اور پی ڈی پی کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو یہ الیکشنز ہے یہ پانی، بجلی اور سڑک پہ نہیں ہے، یہ ہمارے حق کے لیے ہے، ایک لڑائی ہے۔ تو اسی آئیڈیالوجی کو سامنے لیتے ہوئے جو یہاں کے بچے ہیں، جو یوتھ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں اور ایک حکومت جو ہے یہاں پر آئے، تاکہ جو بھی پرابلمز یہاں پہ ہے جنہیں ایڈریس کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا ہے اگر یہاں پہ پرابلمز ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اسکیمز ہو رہے ہیں، تو یہاں پر چاہتے ہیں لوگ کہ یہاں پر ایک حکومت آئے اور ہم یہاں پر جو ہے اپنے طریقے سے یہاں پر اپنے کام کریں۔ جو سری نگر کی پارلیمانی جو یہ حلقہ ہے یا نشست ہے، اس کی اگر آپ نے تصویر کھینچنی ہے تو کس طرح کھینچیں گی آپ؟ اگر ہم سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں اگر ہم زیادہ بولے فٹ ہولڈ کس کا ہے اس وقت، تو یہاں پر لگتا ہے کہ این سی اور پی ڈی پی کے درمیان جو ہے ایک ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ دو طرفہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یعنی ٹرائنگل لڑائی نہیں ہے، اپنی پارٹی کو آپ میدان میں نہیں دیکھتے؟ اپنی پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بہت ٹائم لگے گا اپنی پارٹی کو لوگوں کا اعتماد جیتنے میں، کیونکہ ابھی لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ کنفیوژن میں ہے کہ اپنی پارٹی ہے کیا، بہت سارے جو ہے کرٹیسزم بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کو، اور بہت سارے جو لیڈرز ہیں این سی کے، پی ڈی پی کے، تو انہیں کسی اور شکل میں دکھا رہی ہے، سامنے ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو اس کا ان کو بہت ہی زیادہ نقصان جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے اس وقت۔ اگر ہم این سی اور پی ڈی پی کی بات کریں تو دو ینگ لیڈرز سامنے ہیں، وحید الرحمان پرا اور آغا روح اللہ مہدی، تو وہ زیادہ یہاں پر جو ہے فٹ ہولڈ دکھا رہے ہیں۔ بات کریں گے آگے، آپ اس پر نظر رکھیے گا۔ ساؤتھ کشمیر جائیں گے اور ساؤتھ کشمیر کی صورتحال کیا ہے ان پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے؟ شاہ ہلال، حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہے، اننت ناگ کی جو نشست ہے وہ پہلے کچھ اضلاع تک محدود تھی ساؤتھ کشمیر کا، اب اس کا دائرہ پیر پنچال تک گیا ہے، راجوری اور پونچھ تک اس کا دائرہ بڑھ چکا ہے، کیا سچویشن ہے؟ سر دیکھیں، جہاں تک اننت ناگ راجوری پارلیمانی نشست کی بات کریں گے، اس کو جب حد بندی کی گئی تو اس سے پہلے یہ لوک سبھا انتخابات 4 اضلاع پر مشتمل تھی، جس میں اننت ناگ، کلگام، شوپیاں، پلوامہ۔ اب جب 2022 میں اس کی حد بندی ہوئی ہے، اب پیر پنچال، خطہ پیر پنچال کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جس میں راجوری ہے، بدل ہے، نوشہرہ، سرن کوٹ، مینڈر، پونچھ حویلی، ان کانسٹیچوئنس اسمبلی کانسٹیچوئنسیز کو اننت ناگ راجوری پارلیمانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی کانسٹیچوئنسی اب مانی جاتی ہے اس انتخابات، اور ظاہر سی بات ہے دفعہ 370 کے بعد پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے، لوگوں میں جس طرح جوش اور جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس نشست پر زیادہ تر جو مقابلہ ہے وہ این سی اور پی ڈی پی کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ این سی کو جس طرح کانگریس نے حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس وجہ سے اب یہ دو طرفہ مقابلہ زمینی سطح پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سر جہاں تک اسمبلی انتخابات کی اگر ہم بات کریں، 18 اسمبلی نشستوں پر یہ لوک سبھا نشست ہے، اور اس میں کل ملا کے اگر ووٹران کی بات کریں گے 18,33,571 ووٹر ہے اس میں، جن میں مرد ووٹران جو ہے 9,33,450 ہے۔ یعنی ورک آؤٹ آپ نے بہت زیادہ کیا ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ دو طرفہ مقابلہ ہوگا،
तीसरी कोई पार्टी ज़मीन पर नहीं है? देखिए सर, जहाँ तक अपनी पार्टी की हम बात करेंगे, अपनी पार्टी 4 साल से बनी हुई है और 4 साल में उन्होंने लोगों का लोगों को कितना एतमाद में लिया, अभी लेना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जहाँ तक अपनी पार्टी की बात करें, हाल ही में पार्टी लीडरान ने एतराफ़ किया है कि बीजेपी शायद इस नशस्त में उनको हिमायत करने का ऐलान करेगी, लेकिन वो कहना फ़िलहाल नामुमकिन है। क्या बीजेपी अपनी पार्टी को इस इंतखाबात में सपोर्ट करेगी या नहीं? जाएगा अपनी पार्टी को नहीं जाएगा। अब हम नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाएंगे और वहाँ बारामूला नशस्त है। शेख संजील से ग्राउंड ज़ीरो की सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। शेख संजील, किस तरह ये इंतखाबात आप कवर कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है बारामूला? जी बिल्कुल सर, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, क्योंकि हर एक पार्टी को जो है ज़्यादातर नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है उस पर नज़र है। क्योंकि अगर हम बात करें जो ही इलेक्शन का बिगुल बजा तो हर एक पार्टी, चाहे हम NC की बात करें या PC वहाँ पर सजाद गनी लोने उनकी बात करें, वहाँ पर उन्होंने जो है अपना जो कारवां है वो स्टार्ट किया और उसके बाद जो है पार्टियाँ ग्राउंड में भी आई और वो भी जो है लोगों से मिलने लगी, क्योंकि इलेक्शन के लिए वोट का जो मामला है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर की, बारामूला उसमें आता है, बांडी पोरा कपवारा उसमें आता है, या आपको खुद भी पता है जो बडगाम के उसके भी 2 जो है असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी उसमें आती है। तो फ़िलहाल के तौर पर NC और PC का जो है वो मुकाबला बड़ा यहाँ पर गंभीर है। उसके साथ अचानक जो है AIP का जो चीफ़ है, अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद की, वो कुछ सालों से जो है जेल में है। जी वहीं पर उसके बाद वहाँ उसके जो वहाँ पर लीडर्स थे, उन्होंने ये चाहा कि हम क्यों ना इंजीनियर रशीद को भी जो है इस इंतखाबात में खड़ा करें। रशीद का फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा उस नशस्त। जी बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करें इलेक्शन के हवाले से, लोकसभा इलेक्शन के हवाले से बात करें, NC यानी उमर अब्दुल्ला खुद जो है बारामूला सीट से लड़ रहे हैं। उसके बाद PC जो सजाद गनी लोन है, चाहे क्योंकि सजाद गनी लोन खुद जो कपवारा और हंदवारा के रहने वाले हैं, तो जो ही इंजीनियर रशीद ने जो अपनी नॉमिनेशन फाइल जो है वो सबमिट की रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला, तो यूं ही मुझे लगता है कि क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पर भी मैंने देखा कि PC के कुछ वोट जो है इसमें कट रहे हैं, क्योंकि वो जो है इंजीनियर रशीद की तरफ जा सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ फिगर जो है मेरे पास, जो नए वोटर है जो पहली बार इन इंतखाबात में वोट डालने जा रहे हैं, श्रीनगर जो पार्लिमानी हलका है या पार्लिमानी नशस्त है, वहाँ पर 47,000 से ज़्यादा जो वोटर है जो पहली दफ़ा वोट डालेंगे। 47,000 उनकी तादाद है जो जिनकी उम्र 18 और 19 साल के दरमियान है। इसी तरह बारामूला में 72,000 से ज़्यादा है और जो अनंतनाग की नशस्त है वहाँ पर 81,000 से ज़्यादा है। अशरफ साहब न्यू वोटर है इसमें, उनका क्या रद्दअमल रहेगा इन इंतखाबात में? ज़ाहिर है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि वही डिपेंड उन पे ही ज़्यादा होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में भी ये होता था कि जो फैमिली डिसाइड करती थी या फैमिली का हेड डिसाइड करता था, उसी पर जो है पूरी फैमिली चलती थी। लेकिन अब क्योंकि लोग भी काफ़ी अवेयर होने लगे हैं, वोटर्स भी अवेयर होने लगे हैं, अब इंडिविजुअली डिसीजन लेती है। अगर हस्बैंड किसी पार्टी को लाइक करता है तो उसकी बीवी जो है वो दूसरी पार्टी को लाइक करती है, बच्चा तीसरी पार्टी को लाइक करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इन चुनावों को सबसे बड़ी जो मेरी क्यूरियोसिटी है अभी फ़िलहाल श्रीनगर के और जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स है, अभी पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ख़ास तौर से 87 के बाद, जैसे ऋषि साहब बोल रहे थे, वोटर टर्नआउट सबसे कम होता था जो असम्बली इंतखाबात है उसके बजाय पार्लिमानी इंतखाबात में 10-12 से ज़्यादा ही नहीं जाता था। अब की बार कयास लगाया जा रहा है और जिस अंदाज से पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी ये रिपोर्टर कह रही थी कि जिस अंदाज से जोश खरोश है लोगों में, उस बीच लग रहा है कि ये परसेंटेज बढ़ सकता है और वो बड़ा फैक्टर होगा उम्मीदवारों का तकदीर तय करने में। उम्मीदवारों की तकदीर तय होगी इन इंतखाबात में। शाहिद साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो न्यू वोटर है या पहला वोट डालने जा रहा है नौजवान, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नौजवान वोटर है, जैसे अशरफ साहब ने बताया कि पहले डिसाइड करते थे, घर वाले डिसाइड करते, घर के बुज़ुर्ग डिसाइड करते थे, लेकिन आज का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो दुनिया की जियोपॉलिटिकल नज़रिया उनका है, तो वो अपने नज़रिए को देखते हुए वोट डालेंगे। और मुझे लगता है ये एक गेम चेंजर होगा जो नौजवान वोट, जो नया वोट ऐड हुआ है। और साथ के साथ जैसे पहले भी मैंने कहा कि एक बड़ा तबका था जो नौजवानों का जो वोट नहीं डालते थे, जो बायकॉट के साथ रहते थे, लेकिन उम्मीद है कि इस इलेक्शन में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह वो बेहतरी के लिए ही होगा।
व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस डिबेट में अभी थोड़ी देर पहले जो है सीनियर तजिया निगार जो है हमीद नासिर साहब वो डिबेट में शामिल हुए हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन इंतखाबात को किस तरह देखते हैं। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कैसे इन इंतखाबात को देखते हैं? ये एक जमहूरी अमल है और इसका हम एहतराम करते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम वोट डालें ही क्यों, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, पहली दफ़ा हम वोट नहीं डाल रहे हैं, इससे पहले भी हमने वोट डाले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चाहे हमने इनफरादी तौर पर किसी शख्स को या तंजीमी हवाले से हमने अगर किसी पार्टी को वोट दिए हैं, तो ये देखना है कि जो उनका मंशूर रहा है अगर उन्हें पूरा किया है तो आज चाहिए कि हमें उनको वोट देना चाहिए। अगर उन्हें वो अपना वो मंशूर था वो पूरा नहीं किया है, फिर भी उनको ये चाहे कि वो आज के इस मंशूर में वो दर्ज करें कि हमारे जो साहब का जो मंशूर हमारा था उसमें हमने जो मुतालबात थे, जो मकासद थे, वो पूरे क्यों नहीं हुए, वो उनको बताना चाहिए था। राल साहब, नौजवान वोटर तो है ही है इस मैदान में और वो अहम फैक्टर रहेगा इन इंतखाबात में, लेकिन ख़वातीन जिनकी तादाद 49% है, 49 बराबर है मर्दों के शाना बशाना, क्या लग रहा है उनका अमल दखल इन इंतखाबात में कितना रहेगा? देखिए, जहाँ तक अब अभी अशरफ साहब ने कहा या शारिक साहब ने कहा कि नौजवान वोटरों का एक बहुत बड़ा अमल दखल इन इंतखाबात में रहेगा। पहले अय्याम में जब इंतखाबात होते थे तो सियासी पार्टी के मंशूर या नज़रियात या सेंटिमेंट को देखते थे और उन बुनियादों पर वोट डाले जाते थे। आज हर घर में मर्द हो या ख़वातीन या नौजवान हो, पढ़े लिखे हैं, औरतें ख़ासकर, उनको एक मौका मिल गया है हर महाज पे काम करने का, वो फुली तरह अवेयर हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार वो नज़रियाती सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि कौन पार्टी उनके लिए क्या करती है। जो पार्टी, जो लीडर उनके लिए अच्छा काम करे और काम के आधार पर, काम की बुनियाद पर वो अब की बार अपना वोट करेंगे, यही मेरा मानना है। सदैब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे जलसे जो है कवर किए हैं, ख़वातीन का हमने देखा इन इंतखाबात में काफ़ी जोश व खरोश है। ख़वातीन इस इलेक्शन प्रोसेस को किस तरह देखती हैं? जी, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो मर्द डिसाइड करते थे घर के, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ख़वातीन जो है वोट डालने के लिए जाती थी। अपना उनका जो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं रहता था, पॉलिटिकल व्यू नहीं रहता था। लेकिन अब जो है हम चेंज देख रहे हैं सोसाइटी में, जो ख़वातीन है वो सामने आ रही है, रैलीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, देख रही है कि कौन लीडर क्या प्रॉमिसेस कर रहा है, किसका क्या मैनिफेस्टो है, तो उसी के हिसाब से वो जो है पूरा एनालाइज़ करके अपना वोट जो है आगे डालने जा रही है। यहाँ पर अगर हम ख़वातीन की बात करें तो एक बड़ा मसला यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स का हुआ है। हाल ही में जो स्मार्ट मीटर्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, बहुत रद्द अमल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है एक PDD की तरफ से जो है बहुत सारे घरों की जो है इलेक्ट्रिसिटी लाइन ही कट कर दी गई। उसके रद्द अमल में यहाँ पर ख़वातीन निकली थी, तो उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो ज़्यादा तौर से जो ख़वातीन है वो ज़ोर यहाँ पर दे रही है कि ये जो स्मार्ट मीटर्स का इशू है वो सॉल्व किया जाए। यानी वो अवेयर है अपने मसाइल के हवाले से और वो चाहते हैं जिस नुमाइंदे को मुंतखब करने जा रही हैं वो उनके मसाइल जो है हल करे। शाहिलाल, सिचुएशन क्या है ख़वातीन के हवाले से अगर बात करेंगे साउथ कश्मीर की? सर, जहाँ तक ख़वातीन की आपने बात छिड़ी है, ख़वातीनों में भी इस इलेक्शन में काफ़ी जोश और जज्बा देखने को मिला। जिस तरह वो रिवायती वन गाकर लीडरान के सामने बिल्कुल आ रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अब वो अपने मर्दों पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपना फ़ैसला खुद कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि जिन्होंने, जिस लीडर ने उनकी बका के लिए आवाज़ उठाई होगी, वो उनके हक़ में इस बार वोट डालने जा रहे हैं। क्योंकि हमने कई यंग वोटर से, जिनका पहली बार वोट डालना है, कई लड़कियों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ख़ास तौर पर आज तक बात की होगी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के इस मज़लूम आवाम की बात उठाई होगी, उस लीडर के हक़ में वो अपना वोट देगी इस बार। सॉरी, मैं आपकी बात करूँ, आपकी अगर जो जोग्राफिकल जो आपकी नशस्त है या पार्लिमानी हल्का है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी है। उम्मीदवार हर एक तक पहुँच पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उम्मीदवार कि हर लोगों तक वो घर की दहलीज तक पहुँच जाए? देखिए शौकत साहब, जहाँ तक आपने उम्मीदवारों की बात की, तो उम्मीदवार जो पहला
डेट निकाला गया था 7 मई को इस नशस्त पर वोट डालने के लिए, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से सभी उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक अर्ज़ी दायर की थी कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है खता पीर पंचाल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, तो उस सिलसिले में इसको थोड़ा सा डेफर किया जाए। तो उसके बाद ही चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया 25 मई को इस इंतखाबात में इस नशस्त पर वोट डालने का फैसला लिया। और जहाँ तक उम्मीदवारों का खता पीर पंचाल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना, ज़ाहिर सी बात है जो ही ये ऐलान किया गया तो उसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी DPAP, ये सभी जमातें राजौरी की ओर, खता पीर पंचाल की ओर गए और वहाँ पे अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, ताकि लोगों को अपने और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के जो वादे दिए रहे लोगों को कि इन बुनियादों पे उनके हक़ में वोट डाली जाए। अब देखना ये है कि क्या लोग क्या फ़ैसला करेंगे, किस उम्मीदवार के हक़ में वोट देंगे, ये तो नताइज के दिन ही पता चलेगा। नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। शेख संजील, आप ग्राउंड ज़ीरो पर देखते हैं, नौजवानों में क्या जोश व खरोश पाया जाता है, ख़वातीन किस तरह का रद्द-ए-अमल दे रही है इन इंतखाबात में? बिल्कुल सर, आपने ख़वातीन के हवाले से बात करी। सबसे पहले मैं इसी को जो है आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ख़वातीन का एक नारा जो है आज है कि हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि पहली बात अगर हम बात करें कि जब पहले इलेक्शन होते, चाहे 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, 2014 में PDP ने जो है नॉर्थ कश्मीर से अपनी सीट निकाली, उसके बाद 2019 में NC ने अकबर लोन जो है उम्मीदवार उनने अपनी सीट निकाली। तो कहीं ना कहीं पर जो है मर्द सामने आ रहे थे उन दिनों जो है मर्द सामने आते, लेकिन औरतों जैसे आज 21वीं सेंचुरी और औरतों से जब हम बात करते हैं कि जब हमने ग्राउंड ज़ीरो पर भी देखा और औरतों से हमने बात करी, उनका भी यही कहना है कि क्या मर्द ही आगे आ सकते हैं, क्या हम नहीं आ सकते? क्योंकि पहले जो है अगर मर्द की बात करें कहा जाता था वो मर्द सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन आज जो है औरतें भी कहीं ना कहीं पर एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो है काम कर रही है। वहीं पर औरतों की अगर हम बात करें, आज जो है बड़ा जोश नज़र आ रहा है औरतों में भी, क्योंकि वो भी जो है जाना चाहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसके साथ साथ नौजवानों की आपने बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अरूज पर है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है नौजवान जो आज वो भी देखना चाहते हैं कि किसी नए लीडर को जो है खड़ा करें। श्रीनगर की नशस्त पर आऊँगा, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। इस बार आपको क्या लग रहा है? तारीख पर नज़र डालते हैं, 12 मरतबा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नशस्त जीत चुकी है, जबकि PDP और कांग्रेस एक मरतबा जीत चुकी है। अब की बार क्या है? इस बार भी एज नेशनल कॉन्फ्रेंस को साफ तौर पर है। नंबर 1 उसकी वजह है जो उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है वो उसकी छवि कहें या हम उसकी इमेज कहें, काफ़ी बेहतर है बतौर उम्मीदवार पूरे श्रीनगर पार्लिमानी क्षेत्र में। क्योंकि मैं अब की बार जो देख रहा हूँ, जो टिकट का बंटवारा हुआ है, जो मैंडेट मिले हैं अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पिक है कैंडिडेट्स को लेकर, वो सबसे बेहतर है तीनों निशस्तों पर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन तीनों निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज है। आप किसको एज देना चाहेंगे इन 3 निशस्तों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या आपकी राय मुख्तलिफ है? देखिए, जहाँ तक जैसे अशरफ साहब ने कहा कि जो उम्मीदवारों का जो चयन हुआ है, जो इंतखाब हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में एज लेके गई है। तो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर अगर हम बात करें तो NC कहीं ना कहीं इस दौड़ में आगे है। बारामूला और अनंतनाग, जी बिल्कुल। बारामूला देखें, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, जहाँ एक तरफ कई पार्टियां एक तरफ आ गई हैं, PC को जो सपोर्ट कर रही हैं, सजाद लोन साहब को सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें अपनी पार्टी भी है, BJP भी, बाकी लोग भी हैं। तो वहाँ पे इंजीनियर रशीद साहब भी कूद पड़े हैं मैदान में। एक और ख़ास बात हुई जो इस इलेक्शन में हुई, अलायदगी पसंद जो खेमा था उसमें नईम खान के जो भाई साहब हैं, मुनीर खान साहब, वो कूद पड़े हैं। और उनके साथ जो नौजवानों का जो हुजूम दिख रहा है, और मैं समझता हूँ वो जो एक बाइकआउट की जो सियासत चल रही थी, यानी आप कह रहे हैं कि बारामूला से कुछ सरप्राइज़ आने वाला है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को इस बात पे मुतफिक हूँ आपसे कि बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं नॉर्थ कश्मीर से। कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग नताइज आएंगे। अगर 3 पार्लिमानी नशस्तों की बात करें, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, एज किसको देंगे आप? देखिए, मतलब अगर आप अनंतनाग की बात कर रहे हैं तो वहाँ मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, तो उसके मुकाबले में जब हम देखते हैं तो महबूब मुफ्ती है, उसका अपना वोट बैंक है, अल्ताफ़ साहब का भी अपना है, और क्या कहते हैं वो हमारा ज़फ़र इकबाल मनार साहब भी उठे हैं, उसका भी अपने एक वोट बैंक है, ज़ाती तौर भी और पार्टी के हवाले से भी। ट्रायंगल वहाँ पर है, लाजमन है, लेकिन ज़्यादा लगता है, अंदाज़ा है कि शायद एज होगा NC को।
तीन पार्लिमानी नशस्तें उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। महबूबा मुफ्ती है, मियाँ अल्ताफ़ लारमी साहब है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नौजवान जो लीडर है वहीदुर रहमान पर्रा साहब है या आगा रूला साहब है। मेरा यही मानना है कि तीनों पार्लिमानी नशस्त पे दुतरफा मुकाबला हो रहा है कि तिकोनी मुकाबला कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो ग्राउंड ज़ीरो पे जहाँ तक सामने बात आती है कि हर जगह पे दो पार्टियों के दरमियान, जैसे नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बरह रास्त मुकाबला है, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान बरह रास्त मुकाबला है, और अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का बरह रास्त मुकाबला है। जो आप किसको एज देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर पीडीपी और एनसी का घंटे का मुकाबला होने जा रहा है। बहुत ही कम मार्जिन से जो है यहाँ पर मुकाबला जीता जाएगा। तो यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा का यहाँ पे पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही ज़्यादा फुट होल्ड है वहाँ पर, और वहाँ पे सोपुर भी है, डाउन टाउन में भी बहुत ज़्यादा रीच है। यहाँ पर आगा रूला का एक ये है ड्रॉबैक कि जो बडगाम का मेन टाउन है वो यहाँ पर छूट रहा है। तो अब देखना ये है कि दोनों में कौन जीतेगा। तो यहाँ पर पीडीपी और एनसी में से कोई श्रीनगर में दिलचस्प नतीजा जो भी होगा वो दिलचस्प ही होगा। शैलाल, आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्हें अपने मजबूत तरीन उम्मीदवार को जो है अनंतनाग नशस्त से मैदान में उतारा। वाकई वो मजबूत तरीन उम्मीदवार है महबूबा मुफ्ती के सामने? बिल्कुल शौकत साहब, जैसे कि आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जिस उम्मीदवार को इस नशस्त के लिए खड़ा किया है उसको काफ़ी दस्तरस है खिता पीर पंचाल पे। जहाँ तक पीडीपी की अगर हम बात करें, पीडीपी का वजूद जो है, जन्म जो है वो साउथ कश्मीर से हुआ है, लेकिन उस जो एक किला पीडीपी का माना जाता है, उस किले को बचाने के लिए खुद महबूबा मुफ्ती और ख़ासकर उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती बिल्कुल लगातार एक महीने से खिमा जन है। ज़िला अनंतनाग में, खासकर साउथ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ज़िला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, एक महीने से वो लगातार इस किले को बचाने के लिए दोनों माँ बेटी जो है वो बिल्कुल मोर्चा संभाली हुई है। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो है वो कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है, और जो भी नताइज सामने आएंगे बिल्कुल कम मार्जिन से जो भी जीत जाएगा इस नशस्त पर, कम ही मार्जिन से जीत जाएगा। शेख संजील, आपसे जानना चाहेंगे, बारामूला की नशस्त एज किसको जाता है? पहले अगर हम बात करें पीसी और एनसी की, अगर हम बात करें, उनमें जो है मुकाबला यहाँ पर सही था, लेकिन जो ही मैंने आपसे पहले भी बताया, एआईपी यानी कौमी इत्तेहाद पार्टी के जो इंडियन रशीद है, उन्होंने जब यहाँ पर जो अपना फाइल है वो सबमिशन यहाँ पर किया, तो उसके बाद जो है अब कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीसी की अगर हम बात करें, क्योंकि हंदवारा और कपवारा में बहुत सारे जो वोट्स हैं जो पीसी के थे, सजाद गनी लोन के थे, लेकिन एआईपी ने जो ही जो फॉर्म सबमिट किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो एआईपी के साथ जो हैं वो टच में नज़र आ रहे हैं। उसके साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि बीजेपी ने भी जो है अपना वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी जो है पीसी का सपोर्ट कर रही है। वहाँ पर डीपीएपी की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है शोएब लोन, उन्होंने भी परसों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी कहा कि हम जो है इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन तब मुकाबला फ़िलहाल के तौर पर एनसी, पीसी और एआईपी की में। वादी कश्मीर की तीनों पार्लिमानी नशस्तों पर जो है वो सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जब 4 जून 2024 को इंतखाबात का जो नताइज का पिटारा है वो जब खुलेगा तो देखेंगे कि कौन उम्मीदवार जीत चुका है और कौन नहीं। जाते जाते जो है मैं कहना चाहूँगा कि वोट की बड़ी ताकत है, आप वोट का इस्तेमाल करें। शौकत साहिल को दीजिए इजाज़त, अपने कैमरा पर्सन इम्तियाज़ गुलजार और फाहम मतू के साथ खुदा हाफ़िज़।